So as a regressionist, what is the meaning of death, right, in that context? So as humans, the worst fear is the fear of being alone. And it has nothing to do with the financial fear. It is to be protected. After the age of 80, 85, if the person has seen fourth generation, they celebrate the death. Very few pockets in India, they do. But largely, if I look at it, 95-96% of the population, they mourn. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो immortal बनना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल. And there सिलिकॉन are some वैली में चल रहा है. जैसे हम डार्क और लाइट की बात करते हैं तो डार्क जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव, डेथ, फियर. जैसे हम लाइट की बात करते हैं वैसे ही हमारे अंदर आ जाता है जन्म, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, ग्रोथ. पर ऐसा कुछ नहीं है. शक्ति चली गई तो शिव शव रह गए, पर शव की ऊर्जा फिर एक नए शिव में चली जाएगी. रिलीजन के हायर वर्जन्स होते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है इट इज न्यूट्रलिटी. अंत ही प्रारब्ध है, मृत्यु ही प्रहर है, ब्रह्मांड के गर्भ से निकली ये सहर है. With that, as they say, last but not the least, this is the last episode of our podcast on past life regression. Thank you so much to all of you for the overwhelming response that you have given us, so much of knowledge that we have got from our guest Richa, and also from the questions that you have asked has more, to get the responses to those questions has made me personally and each one of my team members very intelligent. We have gained knowledge through your questions. So thank you so much for that. In the last 7 episodes, we have spoken a lot about past life regression, lineage, soul, how does soul travel, how does energy change, transform, etc. A very important aspect to get into all this, right, to know about past life is death, right? While it's not a good topic for most of us, but that's the truth, right? Sad reality or whatever you want to call it. So what I have understood personally with these discussions is death is not an end, but it's start of a new journey. So instead of mourning for long and behaving as certain people behave when there is a death in the family, we should learn the positive aspect of it and understand it's more of transformation rather than an end. So as I said, it is a start rather than end. If with that we understand, I think this life, the world, the families would be much better place than we are today. So with that, I would like to welcome Richa, as always, to give us more knowledge, shed some more light on this topic. So my understanding, as I said, has changed or evolved while we've been speaking to you with my team, right? Doing all the research that they do in the background, questions that our people who view these podcasts ask us. So now, as I said, for me, it is more of a transformation, right? Energy moving from a body or a soul moving from one a body to another for more meaningful cause. So, what is death as per you? See, first of all, you've picked up the most important topic of past life regression and also human life. तो जो अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो पूरा जीवन हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है, पर इस कॉन्सेप्ट को, डेथ के कॉन्सेप्ट को दो तरह से हमें समझना चाहिए. एक होता है जब हम ट्रांजिशन, बिकॉज इट्स एक्चुअली हम जब भी लाइफ में भी हम मूव कर रहे हैं हर क्षण, वी आर चेंजिंग, वी आर ऑल्टरिंग. सो इट्स अ ट्रांजिशन हैपनिंग विद इन आवरसेल्व्स. सो वी आर डाइंग इन सम फॉर्म and also rebirthing in some form, which is not visible to the human mind or human eyes. क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड होते हैं. जैसे हमारे अगर सिस्टम्स को भी आप देखें तो हमारी स्किन 21 डेज़ में चेंज हो जाती है, हमारा गट लाइनर चेंज हो जाता है. अगर वो चेंज ना हो तो हम बीमार हो जाए. सो इवन डेथ इज़ नॉट एक्चुअली अ डेथ, इट इज़ एन ऑप्शन फॉर रीबर्थ. अब एक जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि डेथ में आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला दैट वी मॉर्न, वी थिंक अबाउट थिंग्स. देखिए, एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे फल आते हैं. अब अगर हम उस पेड़ का पूरे जीवन ध्यान रखते हैं तो उसके बीज जो नए आएंगे वो बहुत हेल्दी आएंगे, ताकि वो जब नए जन्म के लिए या नई प्रोड्यूस के लिए जाएंगे, सो दे विल बी मच मोर हेल्दियर. एंड देन अगेन इफ समबडी टेक्स केयर ऑफ दोज सीड्स एज प्लांट्स एंड दे प्लांट देम, तो वो और एक बेटर प्रोड्यूस में हो जाता है. ऐसी को साइंटिफिकली दिस इज़ प्रूवन दैट हमने जो पहले हमारा जो अनाज था या गेहूँ था, उसको आज की जो क्वालिटी है इट हैज़ इम्प्रूव्ड मल्टीफोल्ड. तो अगर हम लाइफ की भी बात करें, इट वर्क्स द सेम वे.
हम जो पूरा जीवन अपने संस्कार, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकालते हैं अपनी लाइफ से टू इम्प्रूव टूवर्ड्स अ बेटर बीइंग, अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इज़ हाउ वी नर्चर आवर सेल्फ एज अ, क्या बोलते हैं, एक माली की तरह अपने जीवन को कैसे हम क्लीन करें. Aspect of life is only that much, but that is also constant which is happening inside you, but as a human we do not understand this. तो अगर आप डेथ को डे टू डे लाइफ में भी समझेंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को फियर ऑफ डेथ से देखा. आई मेनी पीपल कम टू मी, आई हैव फियर ऑफ डेथ, बट डेथ इज़ हैपनिंग एवरी मोमेंट. लाइक अगर हम कुछ भी देखें तो, और जो रिग्रेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि हमारे जो संस्कार है, लास्ट जो टाइम होता है, अगर आप ओल्ड एज लोगों को देखें तो एकदम उनके अंदर एक अलग सी कामनेस आ जाती है, अलग सी सैडनेस आ जाती है, उनका चेहरा स्टूपी हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, बट देयर सोल इज़ गिविंग देम द मैसेज दैट इट इज़ टाइम. लेकिन क्या होता है, वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत इमोशनल होता है उन लोगों के लिए भी, बिकॉज दे ऑलरेडी नो, बट द लॉजिकल माइंड कैन नॉट प्रोसेस इट. तो उस समय पे उनके अंदर एक जाने की उनको समझ भी आ रही होती है, समथिंग इज शिफ्टिंग इन मी, but they're not able to connect, interpret that or intuit that, if I would say it more specific. तो होता क्या है कि वो जो मोह होता है ना इंसान के जीवन का, वो मोह उसको खींच रहा होता है, because he is in a family, he is looking at his grandchildren, he is looking at the business, he is looking at life, and he's also seeing that death happening inside him. It's time to go, it's time to go. So there is a struggle. अब अगर हम इसको और सिंपल देखें तो जो वाई डेथ एज पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इज दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ विल वी बी इन द मोर स्पेस. क्या हम उस समय इमोशनली अटैचमेंट में चले जाएंगे कि डिटैचमेंट में चले जाएंगे, दैट विल ऑल्सो डिसाइड वॉट वी विल चूज़. क्योंकि अगर मान लो मैंने लास्ट एज में किसी इंसान को याद किया और बहुत पेन में चली गई, तो वही पेन मेरे नेक्स्ट बर्थ के लेसन्स का रीज़न भी बन सकती है. Also, you mean to say people know that they are fearing death and they come to you and ask those questions? Okay, why do you think that they are having those fears? So most of the people have challenges that take decisions, क्योंकि जब हम fear of death होता है तो हमें पता नहीं होता next moment क्या होने वाला है. So it can affect their mental status, it can affect their decision making power, it can affect their even financial status, क्योंकि वो लोगों को हमेशा से लगता है ना, let me save, कल कुछ हो जाएगा. So वो जो fear of death है वो बहुत सारे aspects पे लाइफ को affect करता है. तो उनके जो behavior आता है, personality बन जाती है, उससे हमें जब हम question करते हैं तो हमें पता लगता है कि they are having a lot of fear of death. So then you're saying they will have impact on this life and that they will convert and transform into next life also. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो डिसीजंस अभी फियर ऑफ डेथ की वजह से ले रहे हैं, पैसे की मिजरी अपने दिमाग में होते हुए भी, या डिसीजंस नहीं लेना, लेट्स से आई हैव टू डू दिस कर्मा एंड आई एम सिटिंग, आई कांट टेक इट, आई कांट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. तो ऑफ कोर्स अगर आपके लेसन्स कंप्लीट नहीं होंगे, सो यू विल हैव टू एनीवे मूव फॉरवर्ड. So there are some people who are, suppose for example, very ill, maybe they are having cancer, liver, kidney fail हो रही है, and they are in ICU, right? Going through a lot of medication and medical attention. वो कहते हैं यार मेरे को मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ आई एम इन पेन विथ मी, माई फैमिली अराउंड इज ऑल्सो इन पेन, सो लेट मी गो. वो शायद डेथ मांग रहे हैं, मृत्यु मांग रहे हैं. सो इज दैट गुड इन दिस कॉन्टेक्स्ट देन कि चलो दे आर आस्किंग फॉर डेथ, दे आर नॉट फियरिंग डेथ, दे आर वांटिंग डेथ, and there will be no impact of this in the next life that they बट यू हैव टू ऑल्सो सी गगन दैट, मतलब अगर वो मांग भी रहे तो मिल तो नहीं रही ना. द ब्रीथ साइकिल हैज नॉट येट कंप्लीटेड. तो वो मांगने से आप कई लोगों को देखो ना, कई लोग इतने बीमार होते हैं, तो इवन द पीपल हु आर देयर फैमिली मेंबर्स से कि इनको इस समय मोक्ष मिल जाए, यू शुड लीव द बॉडी, इतना पेन देख के उनसे वो सहन नहीं हो रहा था. क्योंकि मैं हमेशा हर एपिसोड में, हर पॉडकास्ट में एक बात बोलती हूँ, वी आर इमोशनल बींग्स. हमारे इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम किसी का पेन भी नहीं देख सकते, अपने लव्ड वंस का भी, तो हम वो डेथ मांग लेते हैं. लेकिन आप ये भी देखिए कि आयरनी क्या है कि वो इंसान मर नहीं पा रहा है. उसकी जितनी ब्रीथ, उसकी जितना कर्मा है, या उन लोगों को जो कार्मिक अकाउंट पे करना है कि भाई अभी बाहर खड़े रहना है 10 दिन तक, आपको रोज़ वही देखना है, रिग्रेस करना है, तो आपको सहन करना पड़ेगा. सो देर आर पीपल वाइल दे हैव फियर ऑफ डेथ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमॉर्टल बनना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल. सिलिकॉन वैली में चल रहा है, दिस इज हैपनिंग सिंस मेनी इयर्स. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो इट और डोंट नो इट, बट सिलिकॉन वैली में
मुझे एक 2019 में हमारे एक there was a person I met. So he asked me, would you like to get into this space जहाँ आपको immortality मिल जाए तो what would you choose? I said I've seen Bhishma Pitama's story, so I would never like to be immortal because if I have to be immortal, that I will do with sadhana, but not in the body space. क्यों? क्योंकि आपको अगर आप देखिए एज अ ह्यूमन हम एक जनरेशन की पेन देखते हैं. आज अगर आप हैं, आप एक ग्रैंडफादर बनेंगे, आप अपने बच्चे का पेन देखें, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का पेन देखें, आप अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का पेन देखें, आप अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का पेन देखें, तो आपकी लाइफ में क्या बचेगा? आप एक टाइम के बाद सोचेंगे कि आपने जीवन में क्या किया? कुछ भी नहीं. So that is not healthy, but people are working towards it. They are creating some very important tools towards it to get into immortality, and that was the new thing which is upcoming very soon. People will hear about it. So एक तो ये हो गया, एक हो गया there is immortality through the karmas in your life that you do. जैसे हनुमान जी थे, right? He is immortal, Yeah. right? So he may not be here as a human being between us, but he is immortal, right? So For that matter, Gautam Buddha, for that matter, Jesus Christ, for that matter, हमारे सिख गुरु जितने भी 10 बादशाह हैं, so there are many of them. एक इमोर्टैलिटी कोई भी ह्यूमन भी अचीव कर सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट गौतम बुद्धा और हमारे जो सिख गुरु हैं या जैन मुनि हैं, उन्होंने यही प्रूव किया. दैट इज़ वाई वी वर्शिप देम, दे आर इमॉर्टल्स. तो एज ह्यूमन बींग्स इफ वी डिसाइड एंड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पाथ वी नीड टू चूज, तो वो हो सकता है पॉसिबल. So through this, are they also creating a conscious future for their next life? ऑफ कोर्स. इफ बट इमॉर्टल्स, जब हम इमॉर्टल हो जाते हैं तो रीबर्थ की चॉइस नहीं रहती है Correct. हमारे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं. अब देखिए जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, गौतम बुद्ध ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉट इन दिस बट दे आर इमॉर्टल. तो उनके लिए बर्थ साइकिल नहीं है. बट जैसे अभी हम अवतार की बात करते हैं, जैसे हम राम जी ने जन्म लिया, फिर कृष्ण ने जन्म लिया, नेक्स्ट उनका अवतार आएगा, सो दे आर रीबर्थिंग, दे विल रीबर्थ. सो दे, अगर आप देखें तो बोलते हैं रामचंद्र भगवान 14 कला संपूर्ण, कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण. सो दे आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ देयर गिविंग. So अभी आपने बात करी, हमने बात करी immortality के बारे में in the Indian context, Indian cultural perspective. गौतम बुद्धा यहाँ से रहे, हनुमान जी यहाँ से रहे, रामचंद्र, कृष्णा. There are so many examples and so many gods immortal that we follow. But अगर आप real life examples में उसको implement करने की कोशिश करें या बात करें, so we as Indians have a very misconceptualized understanding of death, right? For us, it is grief, it is pain, nothing more than that, right? For each one of us. There are pockets which I know that if after the age of 80, 85, if the person has seen 4th generation, they celebrate the death. Very few pockets in India, they do. But largely, if I look at it, 95, 96% of the population, they mourn, right? It's an end, it's pain, it's grief. These are the words that come to my mind, right? When I also, in Indian context, think of a death. But my understanding, right, having these sessions with you, reading myself what you have suggested me, going through certain videos of yours, is more of energy transformation than an end. Feel that the person has moved out, right? It's a journey, soul journey that we spoke about. तो वो अब soul कहीं और चली गया. It's picked up another body, right? Based on karma, based on lot of stuff, right? Which if people see all the episodes, they would know. So ये misconceptualization जो हमारे Indian culture में है, ये कैसे change होगा? How would people learn rather than grieving, having that grief and mourning? Think it is a Process. journey, a process. Yeah. From one cycle to the next cycle. And it's not an end, move it's a on. beginning. Yeah. And a move on. या सो इधर ना, जैसे सबसे पहला मेरे पास तो जो कॉमनली क्वेश्चन आता है, जैसे किसी की अचानक से डेथ हो जाती, तो पहले तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत वीक होता है. तो समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज लिंगरिंग ऑन इन देयर हेड. एक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी बहुत साल पहले. सो लाइक कैसे ऐसे कैसे हो सकता है दैट द पर्सन लेफ्ट मी? कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आप उस अटैचमेंट स्टेज में हाईएस्ट लेवल पे थे उस रिलेशनशिप में,
तो आपके लिए वो एक्सेप्टेंस कि हाउ कैन माई सपोर्ट सिस्टम गो अवे, सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न जो आपने बोला कि हाउ टू लर्न और अंडरस्टैंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इतने हाईएस्टली अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमारी नीड्स होती है, इमोशनल नीड्स होती हैं, हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दे आर देयर। सो एज ह्यूमंस द वर्स्ट फियर इज़ द फियर ऑफ बीइंग अलोन, एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल फियर, इट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड। जैसे हम पहले जंगल में जानवरों से डरते थे तो हमने ये सोसाइटी बनाई, तो आज भी हम डरते हैं अगर कोई हमको छोड़ के जाता है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ से किसी को खुशी होती है, बहुत लोगों को खुशी भी होती है, थैंक गॉड देव गॉन, ऐसा नहीं है कि सबको पेन ही होता है। बट हिंदी रिलीजन में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फॉर मॉर्निंग फॉर 13 days। एक दिया जलाते हैं और वो दिया अपने आप बुझ जाता है, दे से दैट सोल हैज़ गॉन, दैट वाज देयर ओल्ड वर्जन ऑफ सीइंग हाउ द सोल हैज़ गॉन, एंड वी हैव टोल्ड कि अब हमारा मॉर्निंग पीरियड ख़त्म हो गया। अब तो खैर हम इतनी फास्ट मूविंग उसमें रह रहे हैं कि हम जो पहले हम 1 साल का वो करते थे, शोक करते थे या 6 महीने का करते थे, अब तो आप 4 दिन में ही पूरा कर देते हैं क्योंकि अब नोबडी हैज़ टाइम। बट जो मेमोरीज है वो तो आप किसी की इरेज नहीं कर सकते। जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली अटैच होते हैं या जिनकी इमोशनल नीड्स बहुत हाई होती है, उन रिलेशनशिप से फुलफिल हो रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा पेन होता है या दे गेट अफेक्टेड द मोस्ट। और कई लोग तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी आई सेकंड जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में, तो क्या मेरे फादर आए हैं क्या, और लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कीप्स कमिंग। बट जो पेन आता है वो इमोशनल अटैचमेंट से ही आता है। सो इज दैट ट्रू कि 3-4th जनरेशन के बाद somebody in the family has come, it could be your ancestors? सी कैन बी एंड कैन बी नॉट, बट हमारा माइंड सबसे पहले वहीं जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप इमीडिएटली आ सकते हो, क्योंकि एक सोल को 3 या 4 जनरेशंस तक ही वो एक लाइनेज में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 3 या 4 बार, क्योंकि साइकिल विल नॉट मूव। और जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया भी था, व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, पितृदोष हो रहा है या है, सो द लाइनेज हैज़ टू एंड, क्योंकि ये जो यूनिवर्स का एक है ना, हर चीज़ का जिसका प्रारंभ है उसका अंत है नए साइकिल के लिए। तो अगर एक साइकिल ख़त्म होगी तो दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। बट फॉर द लाइनेज पार्ट समटाइम्स इट इज़ येस दे कम, समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी दे विल कम। बट पीपल हैव दिस कॉन्सेप्ट कि नहीं ये मेरे ही दादाजी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, until unless there is a pact या कोई बहुत इंपॉर्टेंट उस सोल का इस फैमिली के साथ स्टिल इनकम्प्लीशन है जो देनदारी बाकी है, तो मैं फिर से देने आई, या मैं डीएनए का लाइनेज ब्रेक करने आई कि भाई इनके जेनेटिक में मैं ही, आई एम द ओनली पर्सन हु नोज दिस लेसन, मीनिंग आई हैव द की फॉर दैट पर्टिकुलर ओपनिंग। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। So as a regressionist, what is the meaning of death, right, in that context? सो एज अ रिग्रेशनिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेथ है कि मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी हैज़ टू ट्रांसफॉर्म। अब जो डेथ का पीरियड है वो डिसाइड करेगा कि आप क्या संस्कार लास्ट में क्या सोच रहे हैं। पूरा जीवन तो आपने 100 गलतियाँ की, अब मान लेते हैं उनका आपको लास्ट में पश्चाताप हो गया, मान लेते हैं आपको रियलाइजेशन हो गई, और मान लेते हैं आप उस इंसान से बैठ के दिमाग में लड़ रहे हैं, व्हाट आर यू चूजिंग, हाउ यू स्प्रेडिंग योर लास्ट डेज in your own emotional space also creates a context of the new life. तो जो लास्ट एज अ रिग्रेशनिस्ट होता है, क्योंकि जब हम रिग्रेशन करते हैं तो हम सबसे पहले उस इंसान को उसके डेथ सीन पे ही लेके जाते हैं। डेथ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिग्रेशन, सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें वहीं से पता चलेगा कि इस लाइफ के पेन्स क्यों आ रहे हैं, इस लाइफ का जो भी अनरिजॉल्व है। मान लेते हैं एक है करंट लाइफ रिग्रेशन, जो मैंने बहुत बार बोला। करंट लाइफ रिग्रेशन मतलब आप इसी लाइफ के पास्ट में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ आपने वो ब्लॉकेज किया या कहाँ आपका वो पैटर्न क्रिएट हो गया। अब अगर यहाँ कहीं पे भी वी गेट अ क्लियर दिस थिंग, देन वी हैव टू ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन पार्ट, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा रिलेशनशिप लेके आई हूँ। अब जैसे मेरे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली अबाउट पेरेंट्स के साथ अगर आपका इनकम्प्लीट रहा, तो बहुत लोगों ने लिखा नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हों तो कैसे। आप आज नार्सिसिस्ट पेरेंट्स देख रहे हैं, but how about you don't know about yourself in the past life? What about you were also playing a similar role? And today you are here to complete. But as a human, when we are going through it, it's non-acceptance. तो ऐसे कई लोग आते हैं जिनके ऐसे बहुत सारे questions होते हैं which are unresolved, because human का सिर्फ एक ही problem है जो वाकई problem है, वो है emotional pain. And that question brings a big mark in their head कि मेरे साथ ऐसा क्यों? Why me? Correct. This is a common and a constant question with most of the humans.
अगर आप इसीलिए तो आप देखिए ना लीडर्स 4% ही है. You don't have more leaders because they don't have this question only. They understand कि हमें complete करना है, we have to move forward. But people who have this question are always searching for that answer of their emotional need. जैसे हम डार्क और लाइट की बात करते हैं तो डार्क जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव, डेथ, फियर, है ना. जैसे हम लाइट की बात करते हैं वैसे ही हमारे अंदर आ जाता है जन्म, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, ग्रोथ. बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप इसको यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो लाइट एंड डार्कनेस आर टू पार्ट्स. जहाँ डेथ है वही लाइफ का भी नेक्स्ट बिगनिंग है. इट्स लाइक अ सीड. तो जब हम लाइफ की बात करते हैं यिंग एंड यांग, शिवा एंड शक्ति, दे बोथ आर प्लेइंग टुगेदर. क्योंकि एनर्जी खत्म नहीं होगी. हम बोलते हैं शक्ति चली गई तो शिव शव रह गए, है ना. पर शव की ऊर्जा फिर एक नए शिव में चली जाएगी. तो इट इज लाइक अ कन्वर्जन. द लाइट एंड द So there darkness is are converting. interdependence between Yes, both they cannot, life and they dark, cannot. yin and yang. Yeah, until and unless a person does not learn the whole idea of life, the whole idea of birth and death cycle is to one day unite or go beyond that dark and light. तो जो हम बार बार रीबर्थ लेते हैं, मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई इज रीबर्थ हैपनिंग, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस पेन. आप वो डार्क और लाइट को अलग अलग कर रहे हैं. लाइट और डार्क अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है. दे आर ओनली. जैसे आप देखें ना दिया जलाएंगे तो उसके नीचे अंधेरा ही होगा. आपने ऊपर रोशनी, नीचे अंधेरा है, कैसे पॉसिबल है जबकि आपने तो रोशनी की है. सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दे आर टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन, बट यू आर ओनली वांटिंग टू सी द वन पार्ट. यही क्वेश्चन गौतम बुद्ध को आया था, सिद्धार्थ. दैट इज व्हाई ही कुड गो एंड टू अंडरस्टैंडिंग. तो जो हर ह्यूमन का, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं पर्पस क्या है, एक ही पर्पस है, टू अल्टीमेटली गो बियॉन्ड द लाइट एंड द डार्क. yin and yang, पॉजिटिव नेगेटिव, डार्क एंड लाइट, ये हर इंसान के अंदर भी है. करेक्ट. राइट. और हर आदमी के दिमाग में भी है. आप लाइट एंड डार्क को फादर एंड मदर समझ लीजिए. क्या आपका जन्म आपके मदर के बिना हो सकता है, या आपका जन्म आपके फादर के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तो दे आर बोथ पार्ट ऑफ यू. आप कितना भी अपने अंदर से बड़े होने के बाद आप सोचे चलो जी मेरी मदर से नहीं बनती है, मैं अपनी मदर को अपने अंदर से अलग कर दूं. आप कैसे ना, आप संस्कारिकली आप अपनी मदर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं, ना जेनेटिकली निकाल सकते हैं. सो दैट इवन इफ यू हैव अ डार्क रिलेशनशिप विद योर मदर, शी इज अ पार्ट ऑफ यू. इन द सेम वे लाइफ और डेथ, दे आर पार्ट ऑफ यू. वी कैन नॉट separate them at any cost. So each one of us, myself, you, everybody in our team who's with us here or outside, everybody has dark side, everybody has a positive side, light side, everybody has a positive, everybody has a negative. So it's all about that balance that you create, right? If your negative takes over your mind, you will start doing wrong things. Correct. Right? क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल, विच सो दिस इज मोर साइकोलॉजिकल, राइट. जैसे बहुत सारे लोग, यू नो, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लाइक रेपिस्ट्स, पीपल हु, यू नो, आर मर्डरर्स. सो साइकोलॉजिकली उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है दैट हैज टेकन ओवर. सो हाउ आई वांट टू थिंक, एंड ईच वन ऑफ अस हैज टू थिंक दैट सोसाइटी इज बेटर, is good. Females, girls are not afraid of going out after it is dark, right? Because there are certain characters, negative, right? Whose probably the dark side has taken over them. So वो harmony society में लाने के लिए, how as an individual ensure that there is a balance between, even if the negative emotion is coming up, the positive kind of, you know, balances out. तो वो harmony कैसे आएगी, कैसे आ सकती है? सो द होल आइडिया ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में भी बोला कि हम हर बार अपग्रेड करते हैं. अब जैसे मैंने बोला डार्क भी होगा, लाइट भी होगा. तो लाइफ को अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो दो एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. कॉमन मैन क्या करता है, वो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में सोचता रहता है. अब नेगेटिव का मतलब है कि गलत, मैं यहाँ गलत हूँ और मैं इससे अपग्रेड इम्प्रूव करके पॉजिटिव में हो जाऊँ. अब लेकिन मैंने जैसे आपको बोला डार्क और लाइट तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर और डार्कनेस आ जाएगी, मतलब करेक्ट. तो वो चलता ही रहेगा चक्रव्यूह. अब जो स्पिरिचुअल, जो हायर रिलीजन, मतलब रिलीजन के हायर वर्जन्स होते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी मतलब आप देखें मध्य की एक लाइन जो दोनों को इधर उधर रखती है आपके आसपास. अब आप जैसे ना, आपने इतने सारे नाम लिए, रेपिस्ट, ये एक तो साइकोलॉजिकल एरर है. अभी आप, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से उठ के रेपिस्ट बन जाता है या कुछ भी है.
तो वो कुछ ना कुछ उसके आसपास ऐसी चीज़ें होती है जिसको देख के उसको गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हमारी सोशल कंडीशनिंग उनके आसपास की वैसी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी नेगेटिव अपने आसपास माहौल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि लोटस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इसीलिए वो भगवान के चरणों में चढ़ता है। तो जो लोग सोशली नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो आज जैसे सोशल मीडिया है तो उस पर भी उतनी ही नेगेटिविटी दिखाते हैं। तो आप देखिए, ज़रूरी नहीं हर आदमी का रिएक्शन वैसा ही होगा उस क्लिप को देख के। मान ले कोई क्लिप देखा है ना, अभी पीछे अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे वो एक हुआ था जहाँ गर्ल्स को न्यूड वो किया था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो क्लिप कहीं तो किसी सोशल मीडिया से वायरल हुई, कहीं गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए था कि भाई इस चीज़ को वो ना करें, पर एक हिस्से ऐसे लोग भी थे जो उसी को फैला रहे थे, नेगेटिविटी को फैला रहे थे, और एक ऐसे थे जो डिलीट भी कर रहे थे। सो दे वर बोथ, दे वर बैलेंसिंग दैट इट शुड नॉट रीच। अब हम खुद ही तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कोई चीज़ हुई, हमें उसी समय उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था टुवर्ड्स द पीपल हु डिड इट, बट बाय स्प्रेडिंग इट, इट डिडंट शिफ्ट, इट वुड हैव क्रिएटेड मोर नेगेटिविटी। अब देखिए, गुस्सा ही तो बढ़ेगा ना लोगों के मन में, एंगर बढ़ेगा, बिल्कुल एंगर बढ़ेगा। तो आप बैलेंस आउट नहीं कर रहे, उतने ही लोग उसको सपोर्टिव भी होंगे, जो उनका भी राइट है कि भाई हमें सपोर्ट करना है, और जो लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं वो भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो अब उसमें कोई अच्छा एनैक्टमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो आई थिंक आई वाज रीडिंग समवेयर ड्यूरिंग आवर रिसर्च कि इट्स नॉट ओनली द एग्जांपल दैट यू गेव, जबकि अगर हम 3-4 घंटे तक सिर्फ रील्स देखते रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव हम क्या देख रहे हैं, अगर हम रील्स देखते रहेंगे, सो दैट विल ऑल्सो साइकोलॉजिकली इफेक्ट अस एंड मेक अस मोर नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव भी देखते जा रहे हैं, सो बिकॉज तो कहीं थोड़ी ना देर कहीं के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं, मेरे अंदर ये भी कमी है, मैं ये भी गलत हूँ, और आपके अंदर जो सही चीजें हैं आप उनको भी गलत बिलीव करने लग जाएंगे और मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे, और आप उसी वाइब्रेशन पे चले भी जाएंगे। किसी पीपल आर सो हैप्पी, पीपल आर डूइंग दिस, पीपल आर डूइंग दैट, आई एम नॉट हैप्पी, एंड let's say your child comes, you've just seen a reel and you're seeing him behave in a certain way and you've just watched, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो खराब है, आपका कंपैरेटिव मोड शुरू हो जाएगा बिकॉज आपने अभी अभी वो देखा। करेक्ट। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, ये पुराने बुजुर्ग कहते थे। सो इवन इन लाइफ, टू बी इन द बैलेंस, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर लाइफ, बट एज अ ह्यूमन इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी टेंड टू गो, जैसे अभी मैंने बोला ना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन मध्य का क्या था कि उसके लिए जिन लोगों का वो काम था उनको सही एक्शन लेना चाहिए था। सो दैट वाज न्यूट्रलिटी, सो दैट नीदर द नेगेटिव वुड हैव स्प्रेड नॉट द पॉजिटिविटी। मतलब देखो, जब जो लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उनका वो पॉजिटिव साइड था, बट वो हैवॉक भी तो क्रिएट कर रहा है, एंगर भी तो बढ़ा रहा है। करेक्ट, करेक्ट। सो आई थिंक या सोशल मीडिया टू एन एक्सटेंट इज ऑल्सो अ कल्प्रिट, बट आई थिंक एक और एस्पेक्ट हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, टू मे बी बैलेंस इट आउट, इट्स मोर ऑफ मेडिटेशन, बट दैट ऑल्सो इज बिकमिंग सो मच ऑफ अ शो ऑफ दैट people will do 10 minutes of meditation, लेकिन उसकी वो वीडियो रील बना के इंस्टा पे, फेसबुक पे डालेंगे। Whereas आई थिंक आप ही ने एक बार बताया था कि इट इज़ मोर ऑफ आपको ये अलूफ होकर अकेले में करना होता है, राइट? कहते हैं हिंदू रिलीजन में एक बड़ी अच्छी सेइंग है, कह रहे भोजन और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या भोजन खाते हैं या आप क्या भजन करते हैं। पर आज आपका भोजन भी सोशल मीडिया पे और भजन भी है। वो आप इस 5 स्टार में खाने गए, ये नया रेस्टोरेंट है वहाँ खाने गए, राइट? भजन हो रहा है तो दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने धार्मिक हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट is creating that trouble, that imbalance. So I think so फिर वैसे ही आपके मेंटल संस्कार बन जाते हैं, वैसे फिर आप चॉइसेस करते हैं, और फिर एंड में भी आप वैसी ही बातें सोचेंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने 50 साल एक सर्टेन चीज़ सोची है तो अचानक से आप 70 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में अचानक आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, राइट? है ना? तो आपका बिलीफ सिस्टम, तो दैट इज़ वेयर होल ऑफ द गेम ऑफ द संस्कार लाइज, दैट ऑल योर लाइफ व्हाट आर यू सीइंग, करेक्ट, ऑल ऑफ योर लाइफ व्हाट यू आर रीडिंग, ऑल ऑफ योर लाइफ हु आर यू बीइंग विद। आप कहते हैं ना, आपके 5 मित्र आपके लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो इसी तरह से आपके जीवन की चॉइसेस, आपके जीवन के संस्कार भी आपकी डेथ के लास्ट सीन्स को डिसाइड करती है। एंड जब हम लास्ट में डेथ में जाते हैं, पास्ट लाइफ में देखते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया, कोई कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन, अ वुमन कैन बी अ प्रोस्टिट्यूट और हैव मर्डर्ड और मे बी वाज बर्न्ड और किल्ड, तो वो देख पाना कई बार उनके लिए ना बहुत एक्सेप्टेंस नहीं आती है। करेक्ट, क्योंकि हम अभी अपने आप को जैसा देख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि बस हम यही हैं, पर हमने कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं पास्ट में जो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें उनके बारे में ना तो याद है ना हमें समझ है। जबकि देखिए, आपकी जितनी भी पास्ट लाइफ की फाइल्स हैं, पास्ट के बर्थ्स, पास्ट के डेथ्स, पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस,
गुड मेमोरीज भी होती हैं जब हम डेथ Right. के सीन में जाते हैं। तो हमारा जो ये मेडुला है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसमें बहुत कुछ स्टोर्ड है, बहुत कुछ। इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स, Right. इट्स लाइक योर ब्लैक बॉक्स विच कैन टेल यू सो मच। So many things. और अभी हम यहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम में थे, तो हम मेडिटेशन किया, हम वी वर अ होल ग्रुप, तो हमारा 4 दिन का रिट्रीट था। तो जब हम कैंची धाम से एक आगे जगह है, तो वो नीम करोली बाबा का वहाँ पे भी एक आश्रम है। इट्स वेरी क्वाइट, वेरी अलूफ, तो हम वहाँ पे ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना रश होता है कि वी कांट सिट। पर एक समय था जब हम बाबा जी के पास बैठ के भी मेडिटेशन करते थे, दैट वाज आल्सो टाइम, बट नाउ बट बाबा जी की बहुत कृपा है कि हमें वहाँ पे भी वो जगह देते हैं। सो वी वर मेडिटेटिंग एंड द होल ग्रुप, somebody was seeing somebody else in their past life, in the whole group, कि ये इधर यहाँ पे ये किस रूप में पहले आए हुए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स दैट इन अ ग्रुप वी ऑल्सो कैन रिग्रेस, कि क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो सबका एक कनेक्शन है, तभी एक सिनर्जी है, Established तभी होगा, वो लोग आए हैं एक दूसरे के साथ वो यात्रा करने। सो दैट पॉइंट इन टाइम, व्हाट इज द कनेक्शन and why this person is seeing, somebody was seeing this child sitting next to her, that this was my child in the past life. So there were many such things happened that we were seeing कि भाई क्या हो रहा है ये past life का, and there you have come here to Baba Ji to get complete, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो आपको उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर दिया। सो थैंक यू सो मच विद दैट नीम करोली बाबा का जो आपने बात किया, दैट रिमाइंड्स मी आई हैव टू गो देयर, इट्स ऑन माई लिस्ट ऑफ टू डूज, बट देखिए कब बुलावा आता है, सो आई वुड डेफिनेटली I वांट think टू this गो time we देयर। invited you, but Yes, you did. couldn't. Thank you so much. But because of the other commitments and working days, I could not make it. But definitely, I think this year sometime, I'm feeling that vibration की call आएगी, तो मेरे को जाना है. बट आई एम So, ग्लैड आपको बुलाने से पहले वो आपके पास खुद आ गए, दैट वाज द बेटर Yes, part, yes, I of remember. course, of course. So I think again, thank you, Richa. This has been another session where a lot of knowledge that you have given us, and a lot of things to process, implement, and I think even for our viewers, this will be another session where there will be a lot of things to assimilate, lot of things to implement, as we've been requesting. कि आप कुछ भी जो हमने बताया या डिस्कस किया उसको अंधाधुंध इम्प्लीमेंट मत कीजिए, अपने आप को समझिए, हमने जो बताया उसको समझिए, अपनी रिसर्च करिए, एंड देन सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू, राइट? एंड व्हेन यू से दैट वर्ड रिसर्च, आई वुड से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने जीवन से रिसर्च कीजिए, Research करिए। अपने अनुभवों से रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप एक कोई टॉपिक अगर गूगल पे पढ़ते हैं उसके 500 मीनिंग है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ से बड़ी एनसाइक्लोपीडिया कोई भी नहीं है। करेक्ट। सो विद दैट, concluding our last episode of this podcast on past life regression, anything, Richa, that you would want to say while we end this podcast on a very positive note? सो फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचते रहते हैं, अब उसमें तो आप सारी ज़िंदगी इसी चक्रव्यूह में रहेंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो क्वेश्चन होता है उनके माइंड में कि हमें ये लूप तोड़ना है, कि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो लूप तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ के हर क्षण अपने से प्रश्न पूछना है कि क्या मैं ये नेक्स्ट लाइफ में लेके जाना चाहती हूँ। Like if you go to a trip, what do you think? What to pack? You don't take the whole Almira with you or your whole house, but you know what's important. तो आप या तो जीवन मृत्यु के नेक्स्ट फेज को कैसे करना चाहते हैं, that is one question. और the third type of people which are very very rare, कि मुझे मोक्ष की ओर जाना है। मोक्ष कहना आसान है, but मोक्ष की ओर जाना is like a whole concept for a person, because you have to be first learn the word called detachment. और वो तभी आ सकता है जो अच्छा आप यिंग एंड यांग देखते हो तो उसके बीच में मध्य की लाइन होती है, तो जीवन में भी आपके पास हमेशा एक मध्य का रास्ता होता है। तो हम हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से ही बात करते हैं, जो एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन है। सो मेरा एक ही सबको वो है कि आप चुनिए कि आप जीवन के किस पड़ाव में हैं, क्योंकि पड़ाव आपका है और चॉइस भी आप ही को करनी है। और आपको कोई भी भले कुछ भी बोले, आपका माइंड कितना उस बात को लेना चाहता है, आपकी वहीं से रेजिस्टेंस आ जाती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपको देखिए दुख होता है तो हम कहते हैं हाँ मुझे तो मोक्ष ही चाहिए, कहना एक बात है और होना दूसरी। और एक ही लास्ट चीज़ मैं सबको बोलूँगी कि अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, अच्छे हो जाइए, क्योंकि आप अच्छे अपने लिए हो रहे हैं। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम डूइंग,
आई एम डूइंग इट टू माई सेल्फ. तो क्या ये मैं ले पाऊंगी? अगर आपका आंसर है नहीं तो प्लीज़ कभी मत करिएगा, वरना द कर्मा साइकिल यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक. चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर ले, कितनी भक्ति कर ले, कितना राम नाम ले लें, कितना जीवन में कुछ भी कर ले. Yeah. सो दिस वन थिंग आई हैव लर्नड इन माई जर्नी कि आप अच्छे हो जाइए, बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोशिश में कभी आदमी कामयाब नहीं होता. You, because you also tell yourself there is a probability ratio of my failing. So first out of those three, what would you like to? तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन खुद से करना है. एंड लर्न द पाथ ऑफ बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इज द एवरी बैलेंसिंग एक्ट इज अ ब्रेकिंग ऑफ द लूप ऑल्सो. Thank you so much. And I think with that, we will conclude this season on past life regression. And my learning, which I'll try to implement, मेरे को बहुत अच्छा लगा, was भोजन और भजन एकांत में करें. शुक्रिया.